Students, in this lecture we will be starting yet another very important bill act, which is the Specific Relief Act. Specific Relief Act is a part of the syllabus of each and every state's judicial services examination. So no matter for which state you are preparing for, you are bound to study this Specific Relief Act. The good thing about this Specific Relief Act is that this particular act does not have many sections. Only 42 sections are there in this Specific Relief Act, but all these sections are quite important for the purpose of your examination. In states like Delhi or Haryana, as many as 10 to 15 questions are being asked from this particular small act, and in other states also the questions are being asked from the Specific Relief Act, taking an average of 5 to 6 questions in all the states. Fine. So this particular act may look like a very small act, but the importance that it holds in the judicial services examination is quite vital. So you cannot really ignore this Specific Relief Act if you are preparing for the judicial services examination. Secondly, recently in the year 2018, some amendments were being made in this Specific Relief Act that further enhances the importance of this particular act for the purpose of your examination. Fine. So we are going to study each and every section from this Specific Relief Act in quite detail. I will be telling you the important key points from each and every section, and the questions come from only those particular keywords or key points. Secondly, the case law is not that much developed for the purpose of Specific Relief Act. This particular act is actually getting importance in the courts in India quite recently. So we do not really have landmark judgments on this particular act. So if you have a solid command over the bare act itself, it will be fine for you to clear the examination, at least for the purpose of Specific Relief Act. फाइन. सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पहली बात तो ये है कि हमें हर एक सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे ही सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सेकेंडली, जो 2018 में अमेंडमेंट्स हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत अच्छे से करनी है. उसके अलावा बहुत ज़्यादा फोकस जो है केस लॉ के ऊपर इसमें नहीं है. सो अगर आपको बेर एक्ट अच्छे से आ गया है तो फिर आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. फाइन. So Specific Relief Act is one act that actually provides the particular relief, that is it says that the person who is claiming the relief does not want any sort of damages or money compensation but wants the specific thing itself. So आपने जो खोया है, अगर आपको वही चीज़ वापस चाहिए तो आप जो है Specific Relief Act के अंडर उसके लिए जो है एप्लीकेशन लगाएंगे या फिर स्पेसिफिक रिलीफ आप उसके लिए मांगेंगे. सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजरल लॉ. द कोर्ट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर एक्ट व्हाइल गिविंग रिलीफ टू द पार्टीज. फाइन. सेकेंडली, स्पेसिफिक रिलीफ इज नॉट अ राइट ऑफ द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट फॉर दैट मैटर, बट इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू दी कोर्ट ऑफ लॉ. सो अगर कोर्ट को लगता है कि किसी केस में स्पेसिफिक रिलीफ देना ज़्यादा बेटर है या ज़्यादा फिजिबल रहेगा बजाय कि कॉम्पनसेशन के, या फिर कॉम्पनसेशन इन मनी इज़ नॉट अ गुड थिंग इन द पर्टिकुलर केस. अगर किसी केस में ऐसे हो कि सिर्फ पैसों से जो है भरपाई नहीं हो सकती है किसी के लॉस की, तो उस केस में जो है कोर्ट क्या करेगा, स्पेसिफिक रिलीफ का जो है रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है. जो उसने उस पर्टिकुलर पर्सन ने डिमांड किया है वही चीज़ उसको वापस मिल जाएगी. नाउ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली प्रोवाइड्स विद 7 काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स. Let's have a look at the 7 kinds of specific reliefs which are given under the Specific Relief Act. It will also give you an overview of the complete Specific Relief Act. So the first relief under the Specific Relief Act is recovering possession of property. This is given under Chapter 1 of the Specific Relief Act.
from section 5 to section 8 of the act. The second kind of relief is specific performance of contract and substituted performance. This is given under chapter 2 of the Specific Relief Act from sections 9 to section 25. This particular chapter is very important for the purpose of your examination. Although all the reliefs are quite important, but most of the times questions are being asked from the second chapter. Then the third kind of relief is rectification of instruments. This is given under chapter 3 under section 26. So only one section is given for the rectification of instruments. The fourth kind of relief is rescission of contract. This is given under chapter 4 from sections 27 to section 30. Then the fifth kind of relief is cancellation of instruments. This is given under chapter 5 from sections 31 to section 33. Then the sixth kind of relief is declaratory decree. This is given under chapter 6, and section 34 and 35 are dedicated to the provision of declaratory decree. Then the seventh and last kind of relief is given under the heading injunctions. This is given under chapter 8 from section 36 to section 42. Now out of these 7 reliefs, each and every relief is very important for the purpose of your examination, but even if we further need to bifurcate as to the most important out of these reliefs, the most important ones are the specific relief of contract, declaratory decree and injunctions. These are extremely important for the purpose of your examination, और मेंस में भी बहुत बार इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं. Although section 6 that provides with the recovery of possession of immovable property is also quite important for the purpose of your examination. और इसके अलावा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सारे ही सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रेक्टिफिकेशन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसीजन से भी पूछे जाते हैं, कैंसिलेशन से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें मोस्टली पर्टिकुलर सेक्शन ही पूछा जाता है. बट अगर हम देखें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेटरी डिक्री और इंजंक्शन, इनमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं. सो इनको बहुत ध्यान से करने की हमें ज़रूरत है. अदरवाइज द कंप्लीट बेयर एक्ट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन. बट वी नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी सेक्शन इन डिटेल. अगर मान लो आपके पास बहुत कम टाइम हो रह गया और आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो फिर ये जो 3 प्रोविजंस हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं. अदरवाइज जो है सारे ही सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको पढ़ने ज़रूरी हैं. सो दिस वाज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ द कंप्लीट बेयर एक्ट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेयर एक्ट. सो दिस इज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. कब का एक्ट है ये? 1963 का. इसके अलावा एक और एक्ट है जो 1963 का ही एक्ट है. वो कौन सा एक्ट है? लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट इज ऑल्सो फ्रॉम द ईयर 1963. दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963 वॉज इनएक्टेड ऑन 13th of December 1963. सो इनएक्ट कब हुआ ये एक्ट? 13 दिसंबर 1963 को. और एनफोर्स कब हुआ? इट वॉज बीइंग एनफोर्स्ड on 1st of March 1964.
4। लिमिटेशन एक्ट कब एनफोर्स हुआ था? 1 जनवरी 1964। ठीक है, तो दोनों ही एक्ट जो है 1963 में इनेक्ट हुए थे, लेकिन लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दोनों ही एक्ट एनफोर्स जो है वो 1964 में हुए थे। लिमिटेशन एक्ट 1 जनवरी 1964 को एनफोर्स हुआ था और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो 1 मार्च 1964 को एनफोर्स हुआ था। So the preamble of the specific relief act says an act to define and amend the law relating to certain kind of specific relief. So the main purpose of the specific relief act is to define and amend the laws relating to certain kinds of specific relief. It further says, be it enacted by Parliament in the 14th year of the Republic of India as follows. Now part 1 provides with the preliminary part of the specific relief act. Section 1 provides with the short title, extent and commencement. So normally section 1 जो है वो सभी एक्ट्स में short title, extent और commencement के लिए ही होता है. So it says this act may be called Specific Relief Act 1963. It extends to the whole of India including Jammu and Kashmir. So पहले जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, बट नाउ दिस इज applicable even to the state of Jammu and Kashmir. It further says it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. So किस दिन एनफोर्स होगा? जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश करेगी। और कब एनफोर्स किया फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 1 मार्च 1964 को। Then section 2 of the specific relief act provides with the definitions. Certain definitions are given under section 2 of the specific relief act. These definitions given under the specific relief act are not that much important for the purpose of your examination, so you don't really have to focus too much on these definitions. But nevertheless, let's have a look at the definition. It says, in this act, unless the context otherwise requires, obligation includes every duty enforceable by law. So obligation का क्या मतलब है? जो ड्यूटी लॉ के द्वारा enforceable है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा. So this is only an inclusive definition. Settlement means an instrument other than a will or codicil as defined by the Indian Succession Act, whereby the destination or devolution of successive interests, movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of. So settlement is basically an instrument to dispose of the successive interest, but it does not include will under the Indian Succession Act. बस इसमें ये ध्यान रखना कि सेटलमेंट जो है उसमें विल इंक्लूड नहीं होती है. इसके अलावा अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में सक्सेसिव इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेटलमेंट. नाउ ट्रस्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट. सो ट्रस्ट का मतलब जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो है उसी से हमने यहाँ पे भी इन्फर करना है. Then trustee includes every person holding property in trust. So whoever holds the property in trust will be said to be the trustee. Now this particular definition which is given under section 2 clause E is very important for the purpose of your examination. It says all other words and expressions used herein. So जो भी words या expression यहाँ पे use किए गए हैं specific relief act में but not defined, लेकिन कोई definition नहीं दी गई है. देखो ये आप खुद ही देख सकते हो कि कई सारे एक्ट्स में 15-20 डेफिनेशंस भी होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सिर्फ 5 ही डेफिनेशन दी गई हैं. सो अगर कोई ऐसा वर्ड है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो यूज़ किया हुआ है लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो उस केस में हम उसकी डेफिनेशन कहाँ से लाएंगे? बट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट द पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड हैज़ बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देन in that case that particular word which is being used in the specific relief act shall have the
मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन असाइन की गई है किसी पर्टिकुलर वर्ड को, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही इन्फर करेंगे। फाइन। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया है जिसकी डेफिनेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं दी गई है, लेकिन अगर उसकी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, तो उसकी डेफिनेशन हम कहाँ से लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही उसकी डेफिनेशन को हम इन्फर करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यूज तो किया गया है लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो उस केस में हम उसकी डेफिनेशन कहाँ से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। Then clause 3 is a savings clause. It says, except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than the specific performance which he may have under any contract. So contract के केस में अगर कोई term या condition है, that will have an overriding impact over the specific relief act also. Fine. So specific relief act में अगर कोई particular provision दे रखा है, that particular provision will not deprive any person of any right to have relief under the contract. Then nothing in this act shall be deemed to affect the operation of Indian Registration Act 1908 on documents. So documents के ऊपर Indian Registration Act का operation जो है वो specific relief act से override नहीं किया जा सकता है. So this is the savings clause that basically saves the terms of a particular contract and the operation of Indian Registration Act on the documents. So specific relief act का इनके ऊपर कोई भी impact नहीं पड़ेगा. Now coming to a very important provision which is given under section 4 of the specific relief act. So section 4 says specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws. So specific relief act जो है वो कब ग्रांट किया जा सकता है? Only for enforcing individual civil rights, और penal laws को enforce करने के लिए specific relief grant नहीं किया जा सकता है. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law. So penal laws को enforce करने के लिए specific relief grant नहीं किया जा सकता है. Specific relief सिर्फ किन cases में grant किया जा सकता है? To enforce individual civil rights. ग्रुप के भी सिविल राइट्स को इम्पोज कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो काम में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को ही एनफोर्स कराया जा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ के थ्रू. फाइन. सो फॉर द मियर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ स्पेसिफिक रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड. मियर पर्पज का मतलब है स्ट्रिक्टली पीनल लॉ को एनफोर्स कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ को ग्रांट नहीं किया जा सकता है. ऑल्दो देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस वेयर इन इंजंक्शंस कैन बी ग्रांटेड टू प्रोहिबिट a person from committing a crime. For example, if A is a person who is being threatened by B that he is going to publish a defamatory statement in a newspaper against A. Now A can approach the court of law and can get injunction against B under the Specific Relief Act. So this is not a purely enforcement of penal law. प्योर पीनल लॉ को एनफोर्स कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो रिलीफ कुछ ऐसा है जो स्पेसिफिक रिलीफ में मिल सकता है विच इज ओनली हैविंग एन इंसिडेंटल रिलेशन विद द पीनल लॉ, इन दैट केस इंजंक्शंस और स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड. फाइन. बट इसमें आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को ही एनफोर्स कराने के लिए अप्लाई हो सकता है. पीनल लॉज को एनफोर्स कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता है. सो दिस इज एक्चुअली अ बार और प्रोहिबिशन ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट. कोर्ट जो है सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए ही स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट कर सकती है, ना कि
पीनल लॉज को इन्फोर्स कराने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो इसको बहुत आप ध्यान से याद कर लीजिए। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट गिवन अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो एनफोर्समेंट डेट और इनएक्टमेंट डेट जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, वो आ सकती है आपके एग्जाम में। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अगर कोई ऐसा वर्ड जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो उसकी डेफिनेशन हम कहाँ से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम उसकी डेफिनेशन को जो है इन्फर करेंगे। Then the third important question that may be asked from the introductory part is that the specific relief act is granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws. So सिर्फ individual civil rights को ही enforce कराया जा सकता है specific relief के through, specific relief act के through penal laws को enforce नहीं कराया जा सकता है। Fine, so these were the quite important provisions given under the introductory part. Now coming to the first kind of specific relief which is given under the specific relief act. This first kind of specific relief is the recovering possession of property. Section 5 to section 8 of the specific relief act provides with the specific relief of the possession of the specific property. Now section 5 and 6 deals with the possession of immovable property and section 7 and 8 deals with the possession of movable property. So immovable property के लिए 2 sections कौन से हैं? 5 and 6, और movable property के possession के लिए कौन से section है? 7 and 8. Now let's have a look at these provisions. So the relief is recovering possession of property. How would you recover possession of property? आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस कैसे लेंगे, या फिर जिस प्रॉपर्टी के पोजेशन में आप थे वो बेशक से आपकी ना भी थी, फिर भी आप उसका पोजेशन कैसे रिकवर कर सकते हो? दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर चैप्टर 1 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. दिस इज फ्रॉम सेक्शन 5 to section 8. Now section 5 says recovery of specific immovable property. How would you recover the specific immovable property? ध्यान रखना ये सिर्फ immovable property के लिए ही provision है. It says a person entitled to the possession of specific immovable property. So this particular provision talks about the person who is entitled to the possession of specific immovable property. How can he recover the specific immovable property? He may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. So CPC में जो प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर को अप्लाई करके जो पर्सन एंटाइटल्ड है किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो उसको रिकवर कर सकता है. फाइन. सो ये ध्यान रखना है कि ये किस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, जो एंटाइटल्ड है. बेसिकली ये बात करता है टाइटल की, जिसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कैसे करेगा? जो प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया गया है उसको अप्लाई करके वो अपने प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उसका अपना टाइटल है वो उसको रिकवर कर सकता है. दिस इज द जनरल प्रोविजन दैट मेनली सेज दैट इफ यू वांट टू रिकवर the specific immovable property for which you are entitled to, आपको आपका entitlement है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप उस प्रॉपर्टी को कैसे रिकवर करोगे? The manner in which is provided under the code of civil procedure. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया गया है. ये बात करता है टाइटल की. बस इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि अगर टाइटल के आप ऊपर आपको फाइट करना है कि मेरी प्रॉपर्टी है ये, मैं इसका ओनर हूँ, तो उस केस में आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे जो सीपीसी में दिया गया है. अब ये तो बात हो गई एंटाइटलमेंट की या ओनर की या टाइटल की. लेकिन अगर आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो आप उसका पोजेशन वापस कैसे पा सकते हो? ये दिया हुआ है सेक्शन 6 में. Now section 6 is one extremely important section for the purpose of your examination. This is also one of the most favorite sections for the examiner.
सो ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो अगर आप सेक्शन 6 भी बहुत अच्छे से कर लेते तो कहीं ना कहीं ये श्योरिटी हो जाती है कि एक क्वेश्चन तो आपका पक्का ठीक हो जाएगा। फाइन। सो सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ immovable property. So once if the person has been dispossessed of immovable property, then what remedy that person would have, this is what is given under section 6. So section 6 में किस तरह की रेमेडी दी गई है? पोजेशन के रिगार्डिंग ये रेमेडी दी गई है। बेशक से आप उसके प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, लेकिन अगर आपको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है जहां पे आप रह रहे थे, सो आप पोजेशन वापस कैसे पा सकते हैं? इट सेज इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, सो द पर्सन वाज बेसिकली डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। अगर कंसेंट से होता है तो फिर आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, बट द पर्सन वाज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट एंड ही वाज डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। और किस तरीके से उसको डिस्पोजेस किया गया है? उसको अनलॉफुल या अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के थ्रू उसको डिस्पोजेस किया गया है। अगर लॉ के थ्रू उसको डिस्पोजेस किया गया है, अगर ओनर जो है डिक्री ले आया टेनेंट के खिलाफ और उसके बाद अगर उसको डिस्पोजेस किया जाता है तो उस केस में कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर उसको अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से अगर उसको डिस्पोजेस किया गया है प्रॉपर्टी से, इन दैट केस he, that is the person dispossessed, or any person through whom he has been in possession, or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit. So if the person was dispossessed without his consent from the immovable property एंड अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अगर लॉ के थ्रू डिस्पोजेस किया गया है तब कोई रिलीफ नहीं है, बट इफ द पर्सन वाज डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन रिकवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और उस पर्सन के अलावा और कौन पोजेशन क्लेम कर सकता है? एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन थ्रू दैट पर्सन। सो बेसिकली ये बात कर रहा है अगर ए जो है वो टेनेंट है इन द हाउस ऑफ बी एंड ए इज रिजाइडिंग इन द प्रॉपर्टी विद हिज वाइफ सी। नाउ ए डाइड, फाइन। नाउ सी इज क्लेमिंग द प्रॉपर्टी थ्रू ए। ट्रू जो टेनेंट था वो कौन था? ए। लेकिन अगर ए की डेथ हो जाती है, नाउ शी कैन क्लेम थ्रू ए। सो इस केस में अगर सी को डिस्पोजेस कर दिया जाए बी के द्वारा, तो उस केस में सी कैन ऑल्सो गेट द रिलीफ अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बिकॉज शी इज क्लेमिंग द टाइटल और पोजेशन थ्रू ए। फाइन। सो आइदर द पर्सन ही हिमसेल्फ कैन फाइल फॉर पोजेशन और एनी अदर पर्सन थ्रू whom he has been in possession, or any person who is claiming through him. The person who is claiming through the true tenant can also file the suit for recovery of possession. Fine. So यहाँ पे टाइटल का कोई फाइट नहीं है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है। यहाँ पे फाइट जो है वो है पोजेशन की, कि मेरा पोजेशन था इस प्रॉपर्टी में, मैं इस प्रॉपर्टी में रह रहा था और मुझे अनलॉफुल तरीके से जो है यहाँ से डिस्पोजेस किया गया है, तो मुझे वापस से रीइंस्टेट किया जाए उसी प्रॉपर्टी में। सो सेक्शन 6 जो है वो बेसिकली एक क्विक रेमेडी है। अगर कोई किसी को घर से बाहर निकाल देता अपने टेनेंट को जो उस प्रॉपर्टी में रह रहा था, तो उस टेनेंट के पास जो है क्विक रेमेडी क्या है? वो है सेक्शन 6 में कि उसको जल्दी से जल्दी रीइंस्टेट किया जाए। यहाँ पे टाइटल की या फिर लॉफुल या अनलॉफुल पोजेशन की भी कोई बात नहीं होती है। बेशक से चाहे अनलॉफुल पोजेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो
ट्रेसपासर ही क्यों ना हो, अगर वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा था और उसको डिस्पोजेस कर दिया गया, वो भी सेक्शन 6 में स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है कि मुझे उस प्रॉपर्टी में रीइंस्टेट किया जाए। उसके बाद डिसाइड करो कि मेरा पोजेशन लॉफुल है या अनलॉफुल है, पहले तो उसको रीइंस्टेट कराना ही जरूरी है। टाइटल की या ओनरशिप की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की गई है। अगर आपको टाइटल पे फाइट करना है कि मेरी प्रॉपर्टी है ये, तो आप कहाँ पे जाओगे, सेक्शन 5 में। और लेकिन अगर आपको सिर्फ पोजेशन चाहिए फॉर द टाइम बिंग, अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो आप कहाँ पे रिलीफ लोगे, सेक्शन 6 में। सिमिलरली अगर कोई ओनर है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का और उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी टेनेंट को दे रखी है रेंट पे, और अब अगर टेनेंट बाहर नहीं निकल रहा है उस प्रॉपर्टी से लीज एक्सपायर होने के बावजूद भी, सो उस केस में अब ओनर किस सेक्शन में जाएगा, उस केस में ओनर जाएगा सेक्शन 5 में, क्योंकि यहाँ पे बात होगी टाइटल की कि मेरा टाइटल है और ये टेनेंट जो है वो इस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पोजेशन की बात है, किसी को डिस्पोजेस कर दिया गया है जो उस प्रॉपर्टी में रह रहा था, उसको इमीडिएट पोजेशन चाहिए, उस प्रॉपर्टी का रीइंस्टेटमेंट चाहिए, तो उस केस में वो स्पेसिफिक रिलीफ कहाँ पे लेगा, सेक्शन 6 में। फाइन। सो सेक्शन 5 और 6 में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 बेसिकली टाइटल की बात करता है कि ओनर कौन होगा, एंटाइटलमेंट किसकी रहेगी, और सेक्शन 6 बेसिकली डिस्पोजेस्ड पर्सन को एक क्विक रेमेडी देता है कि आप फिलहाल आपका अपना एक घर तो हो जहाँ पे आप रह सको, उसके बाद आप कोर्ट केस लड़ते रहें कि आपके लॉफुल था पोजेशन या अनलॉफुल था, या फिर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं भी या नहीं। फाइन। सो अगर किसी लैंडलॉर्ड ने किसी टेनेंट को डिस्पोजेस कर दिया है तो उसके पास क्या रेमेडी होगी, उसके पास रेमेडी होगी सेक्शन 6 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, कि उसको इमीडिएटली पोजेशन दिया जाए। और यहाँ पे कोर्ट ये बिल्कुल भी मेरिट्स पे डिसाइड नहीं करेगा कि क्या उसका पोजेशन लॉफुल था या अनलॉफुल था, या फिर उसका खुद की ओनरशिप है या एंटाइटलमेंट है या नहीं है। यहाँ पे कोर्ट सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि क्या उसका पोजेशन था। दूसरी बात, पोजेशन होने के बाद अगर उसको डिस्पोजेस किया गया अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बिना लॉ के अप्लाई किए अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया गया उस प्रॉपर्टी से जिसमें उसका पोजेशन था, तो बस ये दो चीज़ें प्रूव होते ही कोर्ट जो है ये रिलीफ प्रोवाइड कर देगा टू द पर्सन हु इज बीइंग डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। फाइन। इसके अलावा मेरिट्स में अगर केस लड़ना है तो वो जाएगा सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 जो है प्रीमा फेशी सिर्फ यही देखता है कि क्या पोजेशन था, क्या आपको डिस्पोजेस किया गया जहाँ पे आपका पोजेशन था, दैट टू विदाउट योर कंसेंट एंड अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इफ यस देन द कोर्ट कैन ग्रांट द रिलीफ ऑफ giving possession of the property to the person who is being dispossessed. Now clause 2 says no suit under this section shall be brought. So this is the general law, that is if a person has been dispossessed without his consent from the immovable property otherwise than in due course of law, then he can claim possession of the property. But this particular section will not apply to after the expiry of 6 months from the date of dispossession. Dispossession के 6 महीने के बाद आप possession claim नहीं कर सकते हैं under section 6. For example, A is the tenant in the house of B. B is the landlord. अब A को dispossess कर दिया गया 1 जनवरी 2020, ठीक है, इसको इसके घर से बाहर निकाल दिया गया। अब A जो है वो 6 मंथ्स के अंदर जो है उसको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा फॉर पोजेशन। अगर 6 महीने के बाद ये पोजेशन के लिए केस फाइल करता है तो उसमें कोई उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। सो लिमिटेशन पीरियड जो है बेसिकली पोजेशन क्लेम करने का फ्रॉम द प्रॉपर्टी फ्रॉम विच द पर्सन हैज बीन डिस्पोजेस्ड ऑफ इज 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर possession of the immovable property. So अगर किसी को 1 जनवरी 2020 को डिस्पोजेस किया गया है किसी प्रॉपर्टी से,
तो उसके वो जो है लास्ट डे उसका क्या रहेगा 1 जुलाई 2020। उसके बाद उसका जो सूट है ये पोजेशन वाला वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो ये 6 मंथ्स का जो लिमिटेशन पीरियड है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन, जो बहुत बार क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। सेकेंडली, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अगेंस्ट भी सेक्शन 6 में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। सो अगर गवर्नमेंट अपनी किसी प्रॉपर्टी से किसी पर्सन को डिस्पोजेस कर देती है तो उसके पास कोई रिलीफ नहीं होगा। फाइन। सो गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता है। तो ये दो एक्सेप्शन बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। पहला ये है कि ये जो पोजेशन का जो सूट है वो 6 महीने के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सूट फाइल नहीं कर सकते हो। फाइन। सो अगर गवर्नमेंट किसी को डिस्पोजेस करती है अपनी प्रॉपर्टी से तो उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को बोला जाए कि मुझे प्रॉपर्टी में रीइंस्टेट किया जाए। सो दीज टू आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू सेक्शन 6। एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन तो वैसे सिर्फ एक ही है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। दूसरा जो है वो तो सिर्फ एक लिमिटेशन पीरियड है कि 6 महीने के अंदर आपको पोजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन क्लोज 3 says no appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed. So सेक्शन 6 में अगर कोई भी डिक्री पास की जाती है या कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है, किसी को रीइंस्टेट किया जाता है, तो उसके या फिर रीइंस्टेट करने से मना भी कर दिया जाता है। फाइन। सो दोनों ही तरह के रिलीफ हो सकते हैं, या तो रिलीफ दे दिया जाएगा या तो रिलीफ मना कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जो भी सूट सेक्शन 6 में इंस्टीट्यूट किया गया था फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम विच द पर्सन हैज बीन डिस्पोजेस्ड, उस पर्टिकुलर सूट में जो भी ऑर्डर या डिक्री पास की गई है उसके खिलाफ कोई अपील या कोई रिव्यू की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। फाइन। सो अगर ए टेनेंट है और बी लैंडलॉर्ड है, अब अगर ए को रीइंस्टेट कर दिया गया है इन द प्रॉपर्टी ऑफ बी परसुइंग टू सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इस केस में बी जो है वो अपील नहीं कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ना ही ये रिव्यू के लिए कोई पेटिशन डाल सकता है। सो रिव्यू या अपील जो है वो सेक्शन 6 में दिए गए रिलीफ के अगेंस्ट लाई नहीं करेगी। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो अपील या रिव्यू, इनमें से कोई भी रेमेडी सेक्शन 6 में पास की गई डिक्री के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। हालांकि रिवीजन की पेटिशन जो है आप फाइल कर सकते हो। फाइन। सो अपील या रिव्यू, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। ना तो अपील हो सकती है उस ऑर्डर के खिलाफ या डिक्री के खिलाफ, और ना ही रिव्यू हो सकता है। फाइन। अपील एंड रिव्यू, ऑल्दो रिवीजन कैन बी अप्लाइड against the order or decree passed by the court under section 6 of the specific relief act, लेकिन अपील ना तो अपील लाई करेगी ना ही रिव्यू लाई करेगा। Then clause 4 says nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof. So section 6 में किसी को possession दिया जाए या किसी को possession मना किया जाए, उसका ओनरशिप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द पर्सन कैन स्टिल गो फॉर क्लेमिंग हिज टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी। सो मान लो इस केस में ए टेनेंट है और बी लैंडलॉर्ड है। अब कोर्ट ने पाया कि ए को जो है वो रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया है प्रॉपर्टी, बी ने अपनी प्रॉपर्टी से, तो उसको जो है सेक्शन 6 में रिलीफ दे दिया कोर्ट ने, उसको वापस बी की प्रॉपर्टी में रीइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे बी के पास जो है वो कोई बार नहीं आ जाता है। बी अब स्टिल ओनरशिप के लिए अपना एक और केस फाइल कर सकता है। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर ए ने सिर्फ पोजेशन के लिए अप्लाई किया था सेक्शन 6 में, लेकिन अब अगर ए चाहता है कि टाइटल भी उसी का है और उसको टाइटल भी दिया जाए, तो यहाँ पे ए जो है वो टाइटल के लिए भी फाइट कर सकता है। ठीक है। तो
जो भी डिसीजन होगा सेक्शन 6 का, उसका टाइटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसका मेन रीज़न यही है कि सेक्शन 6 में जब रिलीफ देता है कोर्ट, तो सिर्फ यही देखता है कि क्या किसी को रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया है प्रॉपर्टी से। यहाँ पे कोर्ट बिल्कुल भी मेरिट्स पे नहीं जाता है कि रॉन्गफुल पोजेशन था या ओनरशिप किसकी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाती हैं। और यही रीज़न है कि पोजेशन का बेनिफिट देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ओनरशिप को डिनाई या एक्सेप्ट किया गया है। फाइन। सो ओनरशिप के लिए आपको एक अलग केस जो है सेक्शन 5 में डालना पड़ेगा। वहाँ पे रिलीफ कहाँ मिलेगा? सेक्शन 5 में, जो सीपीसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करके कोर्ट देगा। सेक्शन 6 में सिर्फ और सिर्फ पोजेशन के केस में डिस्पोजेस्ड पर्सन को ही रिलीफ दिया जाता है। फाइन। सो दिस वो सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसमें मेन चीज़ें क्या थी कि अगर किसी को जिस प्रॉपर्टी में वो पर्सन रह रहा था, जिस प्रॉपर्टी में उसका पोजेशन था, वहाँ से उसको डिस्पोजेस कर दिया जाए, और वो भी कैसे डिस्पोजेस किया जाए? विदाउट हिज कंसेंट एंड अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो उसके पास क्या रिलीफ होगा? दैट पर्सन कैन रिकवर द पोजेशन बाय फाइलिंग अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। बट लिमिटेशन एक्ट क्या है? कितने टाइम के अंदर उसको ये सूट फाइल करना है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। जिस दिन उसको डिस्पोजेस किया गया है उसके 6 महीने के अंदर उसको पोजेशन के लिए ये सूट फाइल करना पड़ेगा। सो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे 6 मंथ्स है। सेकेंडली, नो सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ सेक्शन 6 में कोई केस नहीं लाया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर किसी को डिस्पोजेस करती है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे रेमेडी नहीं मांग सकते हैं। सेकेंडली, जो भी ऑर्डर या डिक्री पास करेगा कोर्ट सेक्शन 6 में, उसके खिलाफ ना तो अपील लाई करेगी और ना ही रिव्यू और अपील की रेमेडी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाती है। Although even if a person has been granted relief under the section 6 of the limitation section 6 of the specific relief act, that will not bar from him or her from contesting over the title of the property, क्योंकि यहाँ पे टाइटल की तो हमने बात ही नहीं की थी। Now coming to the difference between section 5 and 6 of the specific relief act. Sections 5 and 6 both provide with regard to recovering the immovable property, while section 5 provides with regard to recovery of the specific immovable property with regard to the person who is entitled to have the possession of the property. सो सेक्शन 5 जो है वो टाइटल की बात करता है। जब आप सेक्शन 5 में कोई केस डालते हो तो वहाँ पे क्या मेन जो मुद्दा रहेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि एग्जैक्टली टाइटल किसका है? हु इज एंटाइटल्ड टू हैव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बट द केस अंडर सेक्शन 6 इज विद रिगार्ड टू पोजेशन ऑफ द immovable property. So if the person has been dispossessed of the immovable property, he can file a case under the section 6 of the specific relief act. section 6 में टाइटल की या ओनरशिप की या राइटफुल पोजेशन तक की बात नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पे कोई ट्रेसपासर भी है और इसके अलावा अगर कोई टेनेंट है जिसकी लीज एक्सपायर हो चुकी है, अगर वो भी डिस्पोजेस किया जाता है उस प्रॉपर्टी से जिसमें वो रह रहा था, तो वो भी यहाँ पे सेक्शन 6 में रिलीफ क्लेम कर सकता है। फाइन। सो यहाँ पे टाइटल की या राइटफुल पोजेशन की भी बात नहीं की जाती है। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या उसके पोजेशन में थी वो प्रॉपर्टी, और अगर थी तो क्या ओनर ने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में उसको इजेक्ट किया है, अगर नहीं तो उसको ये रिलीफ दे दिया जाएगा। फाइन। So the two sections, that is section 5 and section 6 of the specific relief act, are mutually exclusive. कोई इनका ऐसा रिलेशन ही नहीं है। They are mutually exclusive remedies, and both these sections give quite alternate and distinct remedies. जहाँ सेक्शन 5 में आपको टाइटल ही मिल जाता है प्रॉपर्टी का, सेक्शन 6 में सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ही मिलता है। और पोजेशन मिलने से ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं होता है कि आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल भी है। सो द प्लेंटिफ बेसिकली कैन नॉट कंबाइन बोथ दी रेमेडीज। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही सूट में आप उस
प्रॉपर्टी का टाइटल भी मांग रहे हो और उसी सूट में आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी मांग रहे हो। ऐसे आप प्ली नहीं लगा सकते हो कि मुझे पहले तो उस प्रॉपर्टी में री इंस्टेट किया जाए और उसकी ओनरशिप भी दी जाए। आप इनमें से सिर्फ एक ही रिलीफ एक टाइम पे मांग सकते हो। और उसका रीज़न क्या है कि दोनों ही केसेस में जो कोर्ट डिस्कस करता है मेन इश्यूज को, वो बहुत अलग होते हैं। टाइटल के केस में कोर्ट पूरा मेरिट्स में जाता है कि एग्जैक्टली कौन ओनर है, किसका एंटाइटलमेंट है प्रॉपर्टी पे। और पोजेशन के केस में कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि क्या आप पोजेशन में थे प्रॉपर्टी के और क्या आपको उस प्रॉपर्टी से विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ इजेक्ट किया गया है। इफ यस देन यू कैन बी रीइंस्टेटेड इन दी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। सो बेसिकली यहाँ पे मेरिट्स के ऊपर कोई भी इशू नहीं डिसाइड होता है, बल्कि सेक्शन 6 में मेरिट्स के ऊपर केस डिसाइड किया जाता है। तो आप दोनों ही रिकवरीज को या दोनों ही रेमेडीज को क्लब नहीं कर सकते हो, दोनों अलग अलग केसेस में आप मांग सकते हो। हालांकि मान लो अगर आपको सेक्शन 6 में डिनाई कर दिया जाए, पोजेशन ना दिया जाए, आपको कोर्ट को लगे कि आपको सही तरीके से डिस्पोजेस किया गया था इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बट दैट denial of the remedy to you does not bar you from filing a case under section 5 for having title of the property। बेशक से यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आया हो, कोई भी रिलीफ दिया हो या ना दिया हो कोर्ट ने, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेक्शन 5 में भी अब कोई रिलीफ नहीं मिल सकता है। अगर सेक्शन 6 में आपको कोई रिलीफ नहीं भी मिलता है, यू आर स्टिल एंटाइटल्ड टू क्लेम्स द रिलीफ अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फाइन। So this is the main difference between section 5 and 6 of the specific relief act। section 5 and 6 basically talks about recovery of immovable property। ठीक है, तो ये दोनों ही सेक्शन कैसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। नाउ कमिंग टू रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 7 and section 8 basically talks about recovery of specific movable property। how can you recover the movable property? So section 7 says recovery of specific movable property, a person entitled, this is again talks about entitlement, a person entitled to the possession of a specific movable property may recover it in the manner provided by the code of civil procedure। so जैसे section 5 में कहा था कि if the person wants to contest over the entitlement of the immovable property, he can claim the entitlement through the code of civil procedure। Similarly, if the person wants to claim the entitlement over a movable property also, then what remedy does he have? He have to proceed as per the code of civil procedure। so civil procedure को follow करते हुए वो अपनी movable property जिसके लिए वो entitled है उसको वापस ले सकता है, उसकी रिकवरी कर सकता है। Now explanation 1 says a trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। so यहाँ पे अगर किसी को आपने ट्रस्टी बना दिया है, that trustee is also will also have the power to sue the person on behalf of the ट्रू ओनर। सो ट्रस्टी को भी यहाँ पे एक पावर दी गई है कि अगर ओनर ने अगर कोई ट्रस्टी अपॉइंट कर रखा था किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो ट्रस्टी भी यहाँ पे पोजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है या पोजेशन क्लेम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रू ओनर। सो जिसका वो ट्रस्टी है उसके बिहाफ पे भी वो केस लड़ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रू ओनर है उस मूवेबल प्रॉपर्टी का वही क्लेम करेगा, ट्रस्टी भी ओनर के बिहाफ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। देन एक्सप्लेनेशन 2 सेज अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। सो एक्सप्लेनेशन 2 फर्दर सेज दैट a special or even a temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section। so यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ओनर ही होगे एंटाइटलमेंट के लिए। अगर आपके पोजेशन है ओवर द प्रॉपर्टी इवन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड और फॉर ओनली अ टेम्पररी टाइम पीरियड, even in that case you can also claim the relief under section 7। for example, if A is a person
who is owner of a gold chain. अब A क्या करता है, A जाता है B के पास who is a goldsmith and gives his gold chain to B and takes a loan from B. ठीक है, तो अब यहाँ पे B के पास जो इस प्रॉपर्टी का पोजीशन है गोल्ड चेन का, वो बहुत टेम्पररी है. जैसे ही A लोन पे करेगा वो अपनी गोल्ड चेन को क्लेम कर सकता है. लेकिन अब यहाँ पे मान लीजिए B से A जो है वो अपनी गोल्ड चेन छीन के ले जाता है या फिर रॉन्गफुली उस पर्टिकुलर गोल्ड चेन को का पोजेशन ले लेता है. तो उस केस में नाउ इवन B कैन क्लेम द रिलीफ for recovery of specific movable property under section 7 of the specific relief act. So यहाँ पे true owner होना ज़रूरी नहीं है. अगर किसी के possession में वो property है even for a special purpose or for even a temporary time period, temporary right भी है अगर possession का उस property के ऊपर, that person can also claim the relief under section 7 of the specific relief act. सिमिलरली अगर A ने अपनी वॉच ठीक कराने दी B को, ठीक है, अब वॉच किसके पोजीशन में है, B के पोजीशन में, और अगर ऐसी सिचुएशन में अब A उस वॉच को बिना अमाउंट पे किए B से ले जाता है या चोरी कर लेता है या फिर छीन के ले जाता है, तो उस केस में B के पास भी यहाँ पे राइट है टू क्लेम द स्पेसिफिक रिकवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द ट्रू ओनर ऑल्सो. फाइन. सो सेक्शन 7 में ट्रू ओनर के खिलाफ भी आप केस कर सकते हो. यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाना है दैट यू आर एंटाइटल्ड टू हैव द पोजेशन ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी. फाइन. नाउ सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फर्दर प्रोवाइड्स विद अनदर रिलीफ विद रिगार्ड टू पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट सेज liability of a person in possession not as owner. So the person who is not the owner of the property, he has a liability to deliver to persons entitled to immediate possession. So section 8 is not applicable firstly on the owner. ओनर के खिलाफ सेक्शन 8 में केस आप नहीं कर सकते हो. ठीक है, सेक्शन 7 में हालांकि आप ओनर के खिलाफ भी केस कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 8 में ओनर के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता है. और सेक्शन 8 किसकी लायबिलिटी की बात करता है, सेक्शन 8 उस पर्सन की लायबिलिटी की बात करता है जिसके पोजेशन में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको उस प्रॉपर्टी को किसको डिलीवर करना है, टू द पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन. So it says any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner. So the person who is having the possession is basically not the owner of the property. If the person who is having the possession is he himself is the owner, in that case you cannot get the relief under section 8 of the specific relief act. So this relief is applicable only to the person who is having possession of the property but is not the owner of that property. So any person who is having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled, that person may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession. वो किसको deliver करेगा, उस person को who is having entitlement of over the property इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस. और ये इमीडिएट रिलीफ है, इमीडिएट पोजेशन का जो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये रिलीफ कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. देखो आइडियली अगर कोई भी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, उसकी रिकवरी की बात आती है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, सेक्शन 7 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की. लेकिन अगर आपको इमीडिएट पोजेशन चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है अगर उसका इमीडिएट पोजेशन नहीं मिला तो उसकी हो सकता है वैल्यू खराब हो जाए या फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी है जिस सिचुएशन में, तो वहाँ पे अगर इमीडिएट पोजेशन आपको चाहिए है तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. और ये जो इमीडिएट पोजेशन वाला रिलीफ है वो सिर्फ कुछ ही केसेस में दिया जा सकता है. और वो किन केसेस में दिया जा सकता है, इट कैन बी गिवन व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द agent or trustee of the
plaintiff. So here if A is the agent or trustee of B, अब B ने अपनी मान लो एक गोल्ड चेन A को दी थी, नॉट एज अ मीन्स टू टेक लोन बट ओनली एज एन एजेंट और ट्रस्टी, ठीक है। अब A is having possession of the gold chain as an agent or trustee of B. Now as per section 8 clause A of the specific relief act, B can claim immediate possession of the gold chain from A. So किसी भी एजेंट या ट्रस्टी से जो है अपनी मूवेबल थिंग इमीडिएटली लेने के लिए सेक्शन 8 में आप अप्लाई कर सकते हो। देन when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed. दूसरी सिचुएशन क्या है जब इमीडिएट पोजेशन का रिलीफ दिया जा सकता है, जब मनी कॉम्पनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 December 2020 देर इज एन IPL मैच जिसके लिए आपने एक टिकट खरीदी और उस टिकट को किसी ने आपसे रॉन्गली छीन लिया या ले लिया, ठीक है। तो अब 1 December को अगर मैच है तो आपको जो है मान लो इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता है, इमीडिएट पोजेशन नहीं मिलता अपनी टिकट का, तो 1 December तो चली गई। क्या उसके बाद मनी कॉम्पनसेशन जो है वो सफिशिएंट होगा? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे मनी कॉम्पनसेशन सफिशिएंट रिलीफ नहीं होगा, उन केसेस में इमीडिएट पोजेशन का रिलीफ दिया जा सकता है। फाइन। सो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें मनी कॉम्पनसेशन जो है वो सफिशिएंट या एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो सकता है, तो उन केसेस में इमीडिएट पोजेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि लॉस कुछ ऐसा है जिसको आप मनी कॉम्पनसेशन से अनडू नहीं कर सकते हो। देन व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस, इसके लॉस से एक्चुअल डैमेज कितना है उसको असर्टेन करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ए के पास उसके ग्रैंडफादर की कोई रिंग है, अब उस रिंग को बी जो है उसे ले जाता है। नाउ ए कैन क्लेम द रिंग फ्रॉम बी अंडर सेक्शन 8 बिकॉज इट इज extremely difficult to ascertain the actual damage caused by the loss of the particular movable property। देखो यहाँ पे हो सकता है कि B के लिए तो उस रिंग की कोई वैल्यू हो ही ना, लेकिन A के लिए तो वो रिंग जान से प्यारी है, उसके दादाजी की निशानी आखिरी। फाइन। सो ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक्चुअल डैमेज आप मेजर ही नहीं कर सकते हो। A के लिए तो वो लॉस इतना ज़्यादा है कि उसको आप असर्टेन ही नहीं कर सकते हो कि इतने पैसे दे दूंगा और तुम ये मुझे रिंग दे दो। फाइन। सो ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पे एक्चुअल डैमेज या लॉस को मेजर करना पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे इमीडिएट पोजेशन जो है वो क्लेम किया जा सकता है। फोर्थली, व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। अब अगर ऐसी कोई चीज़ है जो प्लेंटिफ से रॉन्गफुली ट्रांसफर हो गई है टू द डिफेंडेंट, या डिफेंडेंट ने किसी रॉन्गफुल मीन के थ्रू उस चीज़ को अपने पास ट्रांसफ़र करा लिया है, तो उसके लिए भी उस पर्टिकुलर थिंग को स्पेसिफिकली डिलीवर किया जा सकता है। सो ये 4 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इमीडिएट पोजेशन के लिए वही चीज़ आपको मिलेगी जो आपकी चीज़ जो है वो खोई है। आपको यहाँ पे डैमेजेस या फिर कॉम्पनसेशन इन मनी नहीं देने की बजाय कोर्ट क्या करेगा, आपको वही स्पेसिफिक थिंग की डिलीवरी कराएगा जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी थी या आप जिसके लिए एंटाइटल्ड थे। फाइन। सो एजेंट या ट्रस्टी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे इमीडिएट पोजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको वही अपनी चीज़ मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर कोर्ट को लगता है कि एडिक्वेट रिलीफ जो है वो कॉम्पनसेशन इन मनी नहीं हो सकता है, देखो ये सारे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये पार्टी की कोई राइट नहीं है, बल्कि कोर्ट को अगर लगता है कि अगर किसी एजेंट या ट्रस्टी के पास वो प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे कोर्ट इमीडिएट पोजेशन के लिए बोल सकता है उसको। सेकेंडली, अगर कोर्ट को लगता है कि
compensation in money would not be an adequate relief for the loss of the particular thing. In that case also the court can give the immediate possession of the property to the particular person. Thirdly, when it is quite difficult to ascertain the actual damage caused by the loss of the particular thing, in that case also the court is entitled to give the relief of immediate possession of the property. And fourthly, if the court feels that the thing was wrongfully transferred from the plaintiff, in that case also the court can give the relief under section 8 of the specific relief act. Fine. So इन situations में जो प्रॉपर्टी आपकी खोई है या जो प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोजेस किया गया है, जिस प्रॉपर्टी से आपको दूर किया गया है, वही प्रॉपर्टी आप वापस क्लेम कर सकते हो. नाउ एक्सप्लेनेशन सेज अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लोज बी और क्लोज सी. क्लोज बी व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी would not be an adequate relief, and secondly when it is quite difficult to ascertain the actual damage for the loss. In these two cases it is mandatory on the part of the court of law to presume. यहाँ पे कोर्ट presume क्या करेगा, और ये mandatory है कोर्ट के ऊपर. कोर्ट क्या presume करेगा, that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed or as the case may be. तो यहाँ पे कोर्ट खुद ही प्रिज्यूम करेगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कॉम्पनसेशन मनी वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ, इन दैट केस द कोर्ट शैल गिव द रिलीफ ऑफ इमीडिएट पोजेशन. सेकेंडली दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कोज्ड बाय इट्स लॉस. अगर कोर्ट को लगता है कि इसका जो नुकसान, इसके जो लॉस से जो नुकसान होगा या जो डैमेज होगा वो उसको असर्टेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है. एक 1000 ईयर्स पुरानी आइडोल है जो ए के पास थी और उसको किसने ले लिया, बी ने ले लिया. तो अब 1000 साल पुरानी आइडोल का कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना किसी भी चीज़ के साथ. आप इसको मनी वैल्यू में आप तोल ही नहीं सकते हो, राइट. सो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे ये किसी चीज़ की वैल्यू को ही असर्टेन करना बहुत मुश्किल हो, ए के लिए तो इस 1000 साल पुरानी मूर्ति की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये इसकी खानदानी मूर्ति है मान लो. तो यहाँ पे कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू असर्टेन करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है इमीडिएट पोजेशन का रिलीफ दे देगा उस पर्सन को. So these were the main provisions that I wanted to discuss with you for today's class. Now let's have a look at some of the MCQs. The first question is, the word and expressions used in the specific relief act but not defined in the act have meaning as defined in the option A General Clauses Act, option B Indian Contract Act, option C Transfer of Property Act और ऑप्शन डी सिविल प्रोसीजर कोड. सो अगर कोई ऐसे वर्ड्स एक्सप्रेशन है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिए तो हुए हैं लेकिन उनकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो उस केस में हम किस एक्ट की हेल्प लेंगे, किस एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उनको इन्फर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई हैं उसी की लाइन पे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के वर्ड्स को भी इंटरप्रेट करेंगे. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड. ऑप्शन ए फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ, फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉ एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग सिविल राइट, ओनली फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉ, फॉर एनफोर्सिंग सिविल राइट्स and a penal law. So specific relief under the specific relief act can be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing a penal law. So सिर्फ individual civil rights को ही enforce करने के लिए specific relief grant किया जा सकता है, पीनल लॉ को एनफोर्स करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता है. दिस इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 4. 4 में क्या दिया गया है?
वोट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज, किस चीज के लिए है? ओनली टू एनफोर्स इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ. Specific relief under the Specific Relief Act 1963 can be granted for enforcing only individual civil rights, individual and public civil rights, only public civil rights, all of the above. क्या सिर्फ देखो ये तो हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए अप्लाई किया जाता है. अब दूसरी बात आती है कि क्या यहाँ पे पब्लिक के सिविल राइट्स को भी एनफोर्स कराया जा सकता है? द आंसर इज नो. द स्पेसिफिक रिलीफ अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स. इंडिविजुअल्स के सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है. पब्लिक सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता है. Then Specific Relief Act 1963 came into operation on December 14, 1963, January 1, 1964, February 1, 1964 और March 1, 1964. So कब ऑपरेशन में आया, कब एनफोर्स किया गया? Specific Relief Act, it was enforced on 1st March 1964. तो इसको याद करने का एक ये भी तरीका है. 1 मार्च को मौसम कैसा होता है? मॉडरेट, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है. सो बेसिकली आपको सर्दियों से रिलीफ मिल जाता है. कब मिलता है सर्दियों से रिलीफ आपको? ऑन 1 मार्च. सो 1 मार्च 1964 को कौन सा एक्ट एनफोर्स किया गया था? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. रिलीफ कब मिला? 1 मार्च 1964 को. जैसे आपको सर्दियों से रिलीफ मिलता है 1 मार्च को, वैसे ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी कब आया था ऑपरेशन में? मार्च 1, 1964 को. और लिमिटेशन एक्ट की एनफोर्समेंट डेट को याद करने का क्या तरीका था? लिमिटेशन एक्ट कब एनफोर्स किया गया था? 1 जनवरी 1964 को. लिमिटेशन 1 जनवरी को हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं. उन रेजोल्यूशंस का मेन पर्पस क्या होता है? टू पुट लिमिटेशंस ऑन आवर हैबिट्स. हम अपने आप पे कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं. कब लगाते हैं हम? 1 जनवरी को. सो लिमिटेशन एक्ट कब आया था? 1 जनवरी 1964 को. और रिलीफ कब मिलता है हमें सर्दी से? मार्च 1, 1964 को. सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब आया था? मार्च 1, 1964 को. देन mere possession of title is enough to maintain an action under section 5 of the specific relief act. Not enough to maintain an action under section 5 of the specific relief act. Only B is correct, none of the above. So mere possession of title, is it sufficient to maintain action under section 5 of the limitation of the specific relief act or not? So section 5 basically किस तरह के relief की बात करता है? The relief to the one who is entitled to the property. So एंटाइटलमेंट के लिए सेक्शन 5 जो है वो रिलीफ देता है. नाउ mere पोजेशन ऑफ टाइटल, सिर्फ अगर टाइटल का पोजेशन है, इज इट सफिशिएंट टू मेंटेन एन एक्शन अंडर सेक्शन 5, या फिर प्रॉपर्टी का पोजेशन होना भी जरूरी है? टाइटल के पोजेशन के लिए प्रॉपर्टी का पोजेशन होना जरूरी नहीं है. ओनली हैविंग पोजेशन ऑफ द टाइटल. अगर आपके पास टाइटल है, अगर आप कागज कार्रवाई में आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, दैट वुड बी एनफ टू मेंटेन एन एक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. हालांकि सेक्शन 6 में अगर रिलीफ चाहिए तो वहां पे आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन भी शो करना पड़ेगा. लेकिन सेक्शन 5 में आप प्रॉपर्टी के ओनर के जैसे आप प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हो, तो वहां पे आपको सिर्फ उसका टाइटल का पोजेशन ही शो करना पड़ेगा या प्रूव करना पड़ेगा. Which of the following sections of the Specific Relief Act deals with recovery of specific movable property? Section 5, Section 7, Section 8 और Section 9. Specific Relief Act में किस सेक्शन के अंडर दिया हुआ है स्पेसिफिक रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी? दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. और सेक्शन 8 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 8 में दिया गया है
Delivery of immediate possession of the property to the person who is entitled to have the property. Fine. So recovery of specific movable property का provision दिया हुआ है section 7 में. Then next question is an order or decree passed in a suit presented under section 6 of the Specific Relief Act is appealable, reviewable, neither appealable nor reviewable, appealable and reviewable both. So section 6 में कोई रिलीफ अगर कोर्ट ने दिया है या रिलीफ डिनाई किया है, बेसिकली कोई ऑर्डर या डिक्री सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पास की गई है, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या रेपरकशंस हैं. कैन एन अपील लाई अगेंस्ट द ऑर्डर और डिक्री और कैन द रिव्यू लाई अगेंस्ट द पर्टिकुलर ऑर्डर और डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ दैट was passed under section 6 of the specific relief act. So section 6 में जो भी रिलीफ मिलता है उसकी ना तो अपील हो सकती है ना ही रिव्यू हो सकता है. So that particular order or decree which is passed in a suit presented under section 6 of the specific relief act, that cannot be neither, that is neither appealable nor reviewable. So appeal और रिव्यू दोनों ही लाई नहीं करेंगे. क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है हालांकि. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपील और रिव्यू नहीं हो सकता है. अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6 कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, अ कंपनी, अ गवर्नमेंट और अ फर्म. सो सेक्शन 6 में किसके अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता है? अगेंस्ट गवर्नमेंट. So a suit for recovery of possession under section 6 cannot be filed against the government. So government को यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है, गवर्नमेंट को बोला जाए मुझे पोजेशन वापस करे. गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे सूट फाइल नहीं किया जा सकता है. The question of title is relevant under section 6 of the specific relief act, irrelevant under section 6. Question of title is not a provision under the specific relief act or none of the above. So question of title is whether it is relevant or irrelevant under section 6. Section 6 में हम basically क्या बात करते हैं? Once a person has been dispossessed from the property, he can claim possession from the of the particular property. तो यहाँ पे क्या टाइटल का क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं? The question of title is not at all relevant, that is the question of title is completely irrelevant under section 6 of the specific relief act. यहाँ पे कोर्ट टाइटल की बात भी नहीं करता है, ये पूछता भी नहीं है कि क्या टाइटल था या नहीं था. कोर्ट सिर्फ यहाँ पे ये देखता है कि क्या पोजेशन था और क्या उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिस्पोजेस किया गया है. अगर हाँ तो उसको पोजेशन जो है दिया जाए, और उसको अगर आप डिस्पोजेस करना है तो लॉ के अकॉर्डिंग डिस्पोजेस किया जाए. सो बेसिकली कोर्ट जो है यहाँ पे या जो लॉ है बेसिकली सेक्शन 6 का, वो प्रोहिबिट करता है या प्रिवेंट करता है किसी भी इंसान को अपने हाथ में कानून लेने से. आप अपने हाथों में कानून मत लो, कानून को अपना काम करने दीजिए. अगर किसी ने गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस कर रखा है तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ डिक्री या ऑर्डर लेके आइए. आप खुद उसको जो है डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो. अगर कर दिया है तो उस केस में द पर्सन कैन क्लेम दी पोजेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. और वहाँ पे टाइटल का क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट है. बेशक टाइटल है या नहीं है उससे कोर्ट को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Then suit for dispossession of immovable property under section 6 of the Specific Relief Act 1963 should be brought within 1 year from dispossession, within 6 months from dispossession, within 3 months from dispossession, within 3 years from dispossession. So section 6 में अगर किसी को डिस्पोजेस कर दिया गया है किसी प्रॉपर्टी से जहाँ पे वो रह रहा था, वो कितने लिमिटेशन पीरियड में उसको सूट फाइल करना पड़ेगा? विदिन 6 months फ्रॉम डिस्पोजेशन. सेक्शन 6 में कितना लिमिटेशन पीरियड है? 6 months. दोनों 6. फाइन. सो ये ध्यान रखना कि सेक्शन 6 में कितना लिमिटेशन पीरियड है? 6 months. और सेक्शन 6 बात क्या करता है? डिस्पोजेशन की. फाइन. सो 6 ऐसे होता है, अगर इसकी हम मिरर इमेज देखें तो कैसे बनेगी?
6 की मिरर इमेज बनेगी ऐसे। फाइन। सो 6 की मिरर इमेज कैसे रिजेंबल करती है? डी से, डी फॉर डिस्पोजेशन। सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है? डिस्पोजेशन। इफ द पर्सन हैज बीन डिस्पोजेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ही और शी कैन अप्लाई फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के बाद अप्लाई करता तो कोई रिलीफ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 6, लिमिटेशन पीरियड 6 months। 6 की मिरर इमेज लुक्स लाइक डी फॉर डिस्पोजेशन। तो डिस्पोजेशन का प्रोविजन है सेक्शन 6 में, और कितने लिमिटेशन पीरियड है? 6 months। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड only in respect of movable property, only in respect of immovable property, in respect of both movable and immovable properties, neither in respect of movable nor in respect of immovable property. So specific relief act में हम किस तरह की प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं? सेक्शन 5, 6 में immovable प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, और सेक्शन 7, 8 में मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए। सो a suit can be filed in respect of both movable and immovable property under the Specific Relief Act. Under section 6 of the Specific Relief Act, a tenant can file a suit for possession even against the landlord on the ground that he was unlawfully dispossessed by the landlord. No question of title either of the plaintiff or of the defendant can be raised or gone into that case. Both A and B are correct or both A and B are incorrect. So under section 6, a tenant can file a suit for possession even against the landlord on the ground that he was unlawfully dispossessed by the landlord. So यहाँ पे tenant भी फाइल कर सकता है केस ओनर के खिलाफ या लैंडलॉर्ड के खिलाफ, और टाइटल की कोई भी बात यहाँ पे नहीं की जाती है। फाइन। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Suit under section 8 of the Specific Relief Act 1963 is not competent against a person who is the owner of the article claimed, against a person who has possession or control over the article in respect of an article for which compensation in money is not an adequate relief, in case where ascertainment of damages is extremely difficult. So section 8 में कौन competent नहीं है सूट फाइल करने के, या फिर किसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया जा सकता है? सूट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट अगेंस्ट अ पर्सन हु इज ओनर ऑफ द आर्टिकल क्लेम्ड। ओनर के खिलाफ आप यहाँ पे केस नहीं कर सकते फॉर इमीडिएट पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनर का जो राइट है वो सबसे ज़्यादा उस प्रॉपर्टी पे रहेगा। सो ओनर को आप यहाँ पे डिफेंडेंट नहीं बना सकते हो। सेक्शन अदरवाइज आप किसी से भी क्लेम कर सकते हो, ओनर के अलावा आप किसी से भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 8। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है सेक्शन 8 का कि ओनर के खिलाफ यहाँ पे आप केस नहीं कर सकते हो। सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज पोजेशन और कंट्रोल ओवर द आर्टिकल, अगेंस्ट अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द आर्टिकल क्लेम्ड, बाय अ पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द आर्टिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी आर्टिकल। सो किस केस में सेक्शन 8 को इन्वोक किया जा सकता है? सेक्शन 8 को बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस में ही इन्वोक किया जा सकता है। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? इमीडिएट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये रिलीफ सिर्फ कब दिया जा सकता है या कब ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता है? दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले हम देखते हैं कि कब इन्वोक किया जा सकता है या किसके अगेंस्ट इन्वोक किया जा सकता है। सो सेक्शन 8 का जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो कब इन्वोक किया जा सकता है? अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज पोजेशन और कंट्रोल ओवर द आर्टिकल, जो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के पोजेशन में या कंट्रोल जिसके पास उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके अगेंस्ट इन्वोक किया जा सकता है। ओनर के खिलाफ कोई सेक्शन 8 में रिलीफ नहीं मिल सकता है। अगर ओनर के खुद के पास ही वो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे आप ओनर से वो चीज़ वापस नहीं ले सकते हो अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फाइन। उसके अलावा अगर वो पर्सन एंटाइटल्ड ही नहीं है पोजेशन के, तो उस केस में भी सेक्शन 8 को इन्वोक नहीं किया जा सकता है। सो द पर्सन शुड बी एंटाइटल्ड टू हैव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंडली,
the person who is having the possession should not be the owner of the property. Then section 8 of the specific relief act cannot be invoked against a person. किसके अगेंस्ट इन्वोक नहीं किया जा सकता है? who has the possession of the property, who has control over the property, who is owner of the property, or none of the above. So section 8 of the specific relief act cannot be invoked against the person who is owner of the property. जो खुद ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते हो. Section 8 of the Specific Relief Act 1963 can be invoked if compensation in money is an adequate relief, if compensation can be easily ascertained, if damages can be easily ascertained, if the article is held by the person as agent or trustee of the claimant, or all of the above. So section 8 जो है Specific Relief Act का कब invoke किया जा सकता है? अगर मनी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट है तो वहाँ पे तो इन्वोक किया ही नहीं जा सकता है. दिस कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ. सेकेंडली, इफ द डैमेजेस कैन बी इजीली असर्टेन देन ऑल्सो सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड. फाइन. सो इन दोनों केसेस में तो इन्वोक नहीं किया जा सकता है. इफ द आर्टिकल इज हेल्ड बाय द पर्सन एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द क्लेमेंट, इन दैट केस सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी इन्वोक. सिर्फ 4 ही इंस्टेंसेस हैं जहां पे इन्वोक किया जा सकता है सेक्शन 8. और वो 4 इंस्टेंसेस कौन से हैं? फर्स्ट इंस्टेंस तो यही है जब जिसके पास वो प्रॉपर्टी है दैट पर्सन इज आइदर एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द क्लेमेंट. सेकेंड इंस्टेंस कब है? व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ, उस केस में भी इन्वोक किया जा सकता है. Thirdly, if the damages can not be easily ascertained, damages को आप easily ascertain नहीं कर सकते हो, तब भी सेक्शन 8 को इन्वोक किया जा सकता है. और फोर्थ इंस्टेंस कब है जब सेक्शन 8 को इन्वोक किया जा सकता है? जब प्लेंटिफ से वो चीज रॉन्गफुली ट्रांसफर कराई गई हो. सो प्लेंटिफ से अगर कोई उसकी चीज रॉन्गफुली ट्रांसफर कराई गई है तो उस केस में भी वो सेक्शन 8 को इन्वोक कर सकता है. सो सिर्फ ये 4 ही इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे सेक्शन 8 को इन्वोक किया जा सकता है. और किस केस में सेक्शन 8 को इन्वोक नहीं किया जा सकता है? अगेंस्ट ओनर. ओनर के खिलाफ आप सेक्शन 8 को इन्वोक नहीं कर सकते हो. बस ये ही मेन चीजें हैं सेक्शन 8 में याद करने की. फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. द डिफेंडेंट मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. द आर्टिकल मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी. The plaintiff must be entitled to immediate possession of the article. The article must be in possession or control of the defendant. So इनमें से कौन सी essential condition नहीं है for applicability of section 8? पहले हम D से शुरू करते हैं. The article must be in possession or control of the defendant. That is true. Defendant के possession या control में होगा तभी तो हम उसके खिलाफ सूट फाइल करेंगे सेक्शन 8 में. सेकेंडली, द प्लेंटिफ मस्ट बी एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन. ये भी बिल्कुल सच बात है कि प्लेंटिफ का एंटाइटलमेंट भी होना चाहिए टू इमीडिएट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. इमीडिएट पोजेशन का एंटाइटलमेंट होने के बाद ही सेक्शन 8 में सूट फाइल किया जा सकता है. थर्डली, द आर्टिकल मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी. दिस इज ऑल्सो क्वाइट ट्रू. सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 8 में सूट फाइल किया जा सकता है. बट द डिफेंडेंट मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन. फाइन. सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर हो, बल्कि डिफेंडेंट तो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे डिफेंडेंट खुद ओनर है प्रॉपर्टी का तो उस केस में तो सेक्शन 8 में कोई रिलीफ मिलेगा ही नहीं. सो द डिफेंडेंट मस्ट नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. सो दिस इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन जिसमें क्या दिया हुआ, द डिफेंडेंट मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस इज नॉट एट ऑल एन एसेंशियल कंडीशन. द आंसर इज ऑप्शन ए. So this is it for today's class. In the next lecture we will be starting with the specific performance of contract, which is again going to be an extremely important class. So please keep studying, keep revising and keep following the lectures. Thank you.